Hello dear students, I hope you all are fit and fine. हम लाए हैं वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12th का एक नया वीडियो आपके लिए. We know goods and services are the backbone of an economy and countless number of goods and services are produced and consumed in the economy. Just think, what are goods? Obviously, any items and consumable substances, materials which are sold to consumers, companies, and government agencies are called goods. In economics, goods are items that satisfy human wants and provide utility. So, students, just guess what topic we are going to discuss today. मैं हूं राकेश कुमार शर्मा. Today we are going to discuss classification of goods. We will learn what are final goods and intermediate goods. We know different goods show different characteristics. Therefore, on the basis of use of goods and characteristics of the goods, we classify goods into two ways, as shown here. Please do have a look. स्टूडेंट्स, क्या आप फाइनल वर्ड का मीनिंग बता सकते हैं? द वर्ड फाइनल मीन्स लास्ट इन द सीरीज, नॉट टू बी चेंज, जिसे बदला नहीं जा सकता, अंतिम या निर्णायक. कीपिंग दिस मीनिंग इन माइंड, वी विल लर्न व्हाट आर फाइनल गुड्स. अ फाइनल गुड्स is a product that the final consumer consumes or uses. The good does not require any additional processing. We do not use final goods for the production of something else. अर्थात फाइनल गुड्स रॉ मटेरियल की तरह काम में नहीं लाए जाते हैं. फाइनल गुड्स आर यूज्ड either for consumption or for investment. No value addition is remaining in the final good. Final goods have crossed the production boundary. चलिए अब देख लेते हैं हम फाइनल गुड्स के एग्जाम्पल. मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर द कंजम्पशन इज अ फाइनल गुड, whereas the other part of the milk which is sold to the producer for making sweet is an intermediate good, not final. Food, clothing, televisions are the examples of final goods if used by the household. Another example, if we buy a cotton shirt to wear, then the cotton shirt is final good. We consume the shirt, that is, we wear it. We do not use the shirt to make something else. अब हमने जो फाइनल गुड्स के बारे में पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं. फाइनल गुड्स आर रेडी टू यूज विदाउट एनी चेंज. फाइनल गुड्स का सीधे एंड यूजर यानी कंज्यूमर के द्वारा उपयोग किया जाता है. फाइनल गुड का प्रयोग किसी अन्य गुड के प्रोडक्शन में नहीं किया जाता है. फाइनल गुड के दो ही उपयोग होते हैं, कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट. फाइनल गुड प्रोडक्शन चेन के बाहर आ चुके होते हैं. फाइनल गुड्स में अब कोई वैल्यू एडिशन शेष नहीं रह जाता है. एक क्वेश्चन है, हु आर द फाइनल गुड्स यूजर? इसका आंसर है कंज्यूमर या हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एजेंसीज, एनजीओस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. फाइनल गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, final producer goods. Final consumer goods are goods that are ready for use by their final user. Consumers are their final user. Example, bread and butter as used by consumers. Final producer goods are the goods that are ready for the use by their final user. Producers are their final user. Example, tractor and harvesters as used by the farmers. Farmers खेती करने के लिए ट्रैक्टर और हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो प्रोड्यूसर हुए. कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड के द्वारा गुड्स और सर्विसेज पर किया गया खर्च या स्पेंडिंग है.
कंज्यूमर के द्वारा किया गया खर्च कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, consumption expenditure refers to the total expenditure incurred by all households in an economy on different types of final goods and services in order to satisfy their want. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर के द्वारा जो गुड्स और सर्विसेज पर खर्च किया जाता है उसे प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर नहीं कहते हैं। इसके लिए अलग टर्म है जो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फाइनल गुड एंड जीडीपी। जीडीपी में हम एक अकाउंटिंग ईयर के न्यू फाइनल गुड्स और सर्विसेज को शामिल करते हैं। जीडीपी में डबल और मल्टीपल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स को छोड़ दिया जाता है और केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू को काउंट किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स को समझ लेने के बाद इंटरमीडिएट गुड्स को समझना बेहद आसान है। फाइनल गुड्स में जो बातें एप्लीकेबल नहीं थी वे अब इंटरमीडिएट गुड्स के लिए एप्लीकेबल होंगी। यदि आप इसे ध्यान से समझेंगे तो इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में डिफरेंस भी आप स्वयं ही आसानी से बता सकेंगे। एन इंटरमीडिएट गुड्स इज अ प्रोडक्ट utilized to produce a final good or finished product. These goods are sold between industries for resale or for the production of other goods. One example of intermediate good is salt, a product that is directly consumed and is also used to manufacture food products. Intermediate goods are those goods which are purchased by one firm from the other for resale or use as raw material. For example, wood. Wood is used for several purposes for construction of building or furniture. Steel, raw material used in the production of many other goods such as bicycle. Glass can be used for manufactures of dishes, cups, bottles and windows. Characteristics of intermediate goods. Intermediate goods are semi-finished goods and producer goods. Intermediate goods are used for producing the final goods, used for industrial and technical purposes, used as raw material. In intermediate goods, value addition is to be done. These goods have not yet crossed the boundary line of production. Intermediate goods cannot be used directly by the end user. These goods are used by businesses in producing goods and services. जैसे हमने फाइनल गुड्स में कहा था नो एडिशनल प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड, यहाँ हम कहेंगे एडिशनल प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड। उसी तरह से इस केस में हम कहेंगे कि यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ समथिंग एल्स। जब कोई वस्तु रीसेल की प्रोसेस में होती है तब उसमें वैल्यू एडिशन होता है और इसीलिए वह इंटरमीडिएट गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर या फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर को और होलसेलर से रिटेलर को वैल्यू एडिशन होता रहता है और इसलिए वह इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन जब रिटेलर से कस्टमर के पास पहुंच जाती है वस्तु तब कस्टमर के पास वह फाइनल गुड्स होती है। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट काउंटेड इन जीडीपी। एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूसर के द्वारा इंटरमीडिएट गुड्स पर जो खर्चा किया जाता है उसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं। यहाँ एक और बात आपके ध्यान में लानी है कि किसी अकाउंटिंग ईयर में यदि 10 यूनिट्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स हैं और उसमें से 7 यूनिट्स इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में प्रयोग में आ जाती हैं तो रिमेनिंग 3 यूनिट्स को फाइनल गुड्स मान लिया जाता है। सेम गुड्स कैन बी फाइनल और इंटरमीडिएट।
A good can be intermediate or final goods depending upon its nature of use. For example, a car purchased by household is final goods, whereas it will be intermediate good if it is purchased by a car dealer. कोई गुड्स फाइनल होगा या इंटरमीडिएट होगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ यूज पर। उसी आधार पर आप ये डिसाइड करेंगे कि वह फाइनल है या इंटरमीडिएट। एक ही गुड्स फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। Some goods may be either final or intermediate goods. For example, milk when purchased by a household, it is final. When it is purchased by a restaurant, it is an intermediate goods. एग को अगर हमने अपने पर्सनल यूज के लिए उपयोग में लिया है और लाके कंज्यूम कर लिया है तो यह फाइनल गुड है। यदि एग को बेकर ने खरीदा और उससे केक बनाया तो केक फाइनल गुड्स है और एग का इस्तेमाल बीच में होने की वजह से यह इंटरमीडिएट गुड्स है। इज अ कार ऑलवेज फाइनल गुड? क्या कार हमेशा फाइनल गुड कही जाएगी? नो। इफ इट इज यूज्ड बाय हाउसहोल्ड for self-consumption, it is called final goods. On the other hand, if car is purchased by a person in order to drive it to earn bread and butter, then in that situation, it is intermediate consumption. यदि कार का हम या हाउस होल्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो फाइनल गुड है। यदि कार से कोई व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कमाता है या कोई अर्निंग करता है तो वह इंटरमीडिएट गुड्स है। डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के हर एक पॉइंट और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने बहुत डिटेल में स्टडी की है। वे ही पॉइंट्स आपको उनके डिफरेंसेस में लिखना है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए एक टेबुलर फॉर्म में वो सारी लिस्टिंग करके यहाँ दी गई है। प्लीज डू हैव अ लुक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेक योर टुमारो टुडे। एंड स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर, proper preparation prevents poor performance. So work hard. Okay, all the best.